नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं सब लोग? We all fine. बढ़िया, What फर्स्ट about क्लास you? सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे हमें रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। अभी मैं 2-4 मिनट और वेट कर रहा हूं और फिर मैं स्टार्ट करता हूं। तब तक हम एक दूसरे से बात करें। और चौधरी साहब, क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया है सर। जी, कुछ लॉकडाउन बताएं। में लॉकडाउन में बैठे काफी। लॉकडाउन में है? हाँ, नहीं, बढ़िया है सर, एटलीस्ट हम सेफ तो है। सेफ है सर। आज का जो सिचुएशन देना चाहिए बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। जी जी, राजेंद्रन साहब। Yes, sir. Good afternoon. How are you? या फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू सर? Yeah, I am fine. Received this invitation through my WhatsApp with our Digvijay ji. Thanks for Yes. this one. Yes, I yes, hope yes. everybody at your end and that area in this corona, please take care of everybody. Surely, surely, So, sir. yeah. जी, हाउ आर यू बांगली सर? वागडी सर? Yes, sir. Good afternoon, sir. सर, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? Fine, sir. So we'll wait for 1 or 2 minutes. We'll recap our yesterday. So what we have yesterday learned from this webinar. Webinar? Today I received that one. I was not able to join yesterday. Since last 2 days I was trying to join, but I could not. Thankful to you, sir. Today I somehow managed to join. Oh, surely. Oh, thank you, sir. Thank you. Great, sir. And we will share this all. Share, you can go ahead, sir. Okay, sir. Okay. It will be good for us, sir. Yeah, surely, sir. Yeah, Mr. Yogesh, good afternoon. Yogesh, sir, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Yeah, how are you, sir? Thank you. Yeah, same, sir. Thank you, sir. सेशन तो अच्छा रहा सर। दोनों अटेंड किया मैंने, कल का परसों का भी जी। और कल जो सर्विसेज के बारे में आपने बताया उसका भी थोड़ा इंफॉर्मेशन अच्छा रहा। Sir, good afternoon. Afternoon. Okay, now we'll start because we don't want to waste your precious. So just we collect our memories. Since last 2 days we have. So first of all things, as per design aspect and as per services, how you can buy our requirement of EOT cranes. हम इसको कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या चीज हमें जानकारी रखनी चाहिए, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए. What are the things to be keep in mind before ordering or before buying? Sorry. So first of all, those who are joining today, just
have 1 or 2 minutes recap. We are talking that what is EOT crane. So can someone will recap? EOT crane क्या होती है? Overhead material handling, Yes sir. basically operated traveling cranes. Yeah. How it works? It's through electrical by prime mover motor, hook, load, hook, then wire rope or chain, then the reduction gearbox, then the prime mover. Thank you sir. Thank you. Thank you. Good memory sir. Thank you sir. Twice having that two movements. One is up and down. That is the only we can say that 4 movement. In EOT crane, we are having that 6 movement. Up and down, left and right, and reverse and forward. Yes. Go to a screen and we'll recap our so yesterday and day before yesterday, we have done and installation and service aspect, purchase and project aspect. Yeah. 5 to 10 minutes time to proceed further. This is the EOT crane, single girder, the 10-ton crane, and this is a double girder, single girder EOT crane. This is Goliath crane, jib crane, electrical wire rope hoist. Can someone explain that? What is Goliath jib crane? Having a pillar and extended arm, sir. Yes, sir. Jib crane is various this one, pillar mounted jib crane. Very good, sir. So this is what you are showing is a pillar mounted jib crane. Yes, sir. This, Basically used in fabrication, erection, fabrication yards, etc. Big fabrication works. Yes, sir. Anyone? That fixed in one pillar and can we move at the 360-degree movement? Yes, we As per can our do. requirement. Yes, now we can proceed. Electrical wire rope hoist. Yes, anyone can? It's a mono having the 4 direction up, down, left, right. Yes, sir. We have learned double girder EOT cranes, which is the commonly, not will go to this complete, just major parts which we are going to include in our inquiry. अपनी जरूरत को देने के लिए
क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, उसको मेनली क्या क्या चीज इनपुट हमें प्रोवाइड करना है हम अपने सप्लायर को, जो कि हमें एक बेस्ट ऑफर बना के दे। उसमें एक तो पहला चीज हमने स्पेन वी हैव डिस्कस, पहले दिन दूसरे दिन भी हमने बात किया था। तो स्पेन हमने बताया था कि ये इतना स्पेन होना चाहिए। देन लिफ्ट कितनी होनी चाहिए, हाइट, फ्लोर टू हुक, हाउ मच लिफ्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारी लिफ्ट कितनी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा। देन हमारी लॉन्ग एलटी हमारी कितनी मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, बिकॉज एलटी के हिसाब से एक तो हमारा डीएसएल डिफाइन हो जाता है कि कितना हमें डीएसएस लिख के देंगे। उसके बाद से इसमें अगर रेल की आपको जरूरत है या गेंट्री गटर की जरूरत आती है, हम पूरी करते हैं। गेंट्री गटर की रिक्वायरमेंट अगर है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपका शेड या बिल्डिंग कंप्लीट है तो कॉल सो दैट प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से उसका हम रेट आपको डिसाइड करें। किस साइज में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें हमारा जो लोहे का साइज है, गटर का साइज है, वो बड़ा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम है तो कम में हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना होना चाहिए सर? स्टैंडर्ड सर, अगर आप 5 से 5, ठीक है सर। अगर चेंज हो जाता है, अगर 6.5 कर दिया, 7 कर दिया तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, अगर 1.5 टाइम चेंज हो जाता है। अच्छा जी, और कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में? थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। सेम ये सिंगल गटर की है, इसमें भी वही चीज है, सारा जो हमने अभी डबल गटर में किया वही चीज हमें देना है इसमें। और रिक्वायर अब हम आते हैं थोड़ा सा बाइंग फैक्ट के बारे में कि हम जो डिसीजन लेते हैं चाहिए कैसे होना चाहिए। एक चीज हम और देखा है और वो चीज हमने यहाँ लिखा भी है कि बाइंग चीफ इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन। हम एक सेफ्टी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और अगर हमें कोई 10%, 20% कम में मिल रहा है और हमने उसको लगा लिया, एंड आफ्टर 6 months या 1 year और 2 year इफ समथिंग गोज रॉन्ग, और सामने वाला है ही नहीं जिससे आप खड़ा कर दिया कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो मेरा ये नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वन टाइम इनमें इन्वेस्ट, आपका जो इक्विपमेंट हो इट शुड नॉट बी लेस देन 20 और 25 इयर्स आपका सही सलामत चले। खराब तो उसमें मैकेनिकल होना ही नहीं चाहिए आफ्टर 25 इयर्स ऑल्सो, बट यू कैन गो फॉर मॉडिफिकेशन। आप उसको नया कर सकते हैं, उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि कभी भी सस्ते के पीछे हम अपने प्रोजेक्ट को हम अपना नाम नहीं खराब करें। बिकॉज अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप भी एसोसिएट हैं, हम भी एक एसोसिएट से एक टाइप से। खराब हो, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका नाम खराब हो या इंड यूजर बोले कि आपने तो ऐसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया, तो दैट विल मेक वन बिग फ्रैक्शन। जी, तो इसमें हम देख रहे हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें हमने पिछले बार डे बिफोर यस्टरडे इनपुट पैरामीटर्स में हमें क्या क्या ध्यान देना है। वी हैव टू कीप इन माइंड
for input parameter. Major input parameters we have mentioned here. First thing, speed. हमारी अगर स्पीड की रिक्वायरमेंट है ज्यादा की, तो हम उस पर सोचेंगे, विचार नहीं, उसमें हम नहीं कटौती। अगर हमारी स्टैंडर्ड जरूरत है, उसमें हम एक स्टैंडर्ड स्पीड जो है कर रहा है, आप उस पर जाएं, या फिर हो जिससे कि मेरा इतने में काम चल जाएगा। नॉर्मली जहां पर हीट फर्नेस या अदर थिंग्स होते हैं, वहां पर हमें स्पीड की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि मटेरियल को वहां उसको हटा देना है। बट इन द सेम केस, अगर हम किसी स्टील शीट को उतार रहे हैं ट्रक से, ट्रक पर या किसी जो वर्क पर हम किसी मशीन पर लोड कर रहे हैं, तो हमारे लिए उतना स्पीड मायने नहीं रखता है। इट शुड बी इन सेफ, हमें उतरे आराम से और वहां तक जाके आराम से सेट हो। कैपेसिटी, कैपेसिटी एक मेजर कॉस्ट इफेक्टिव। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी है, हम उसमें फैक्टर लेके चलें कि हमारा जो इक्विपमेंट हम जो लगा रहे हैं वो मे बी हमारा या 70% काम करेगा, मे बी इट विल वर्क फॉर 80%, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी। इफ वी रिक्वायर्ड 5 ton, we ask for 6 ton. That 5 ton and 6 ton cost is vary, everything is vary. So please review these things, your requirement, और अपने कैपेसिटी को फिक्स करें। फिक्स योर कैपेसिटी, कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू यू। आप उसको फिक्स करें कि मुझे 5 टन की चाहिए तो मैं 5 टन लूं। देन आता है क्लास, एज इट इज हमने डे 1 में डिस्कस किया था कि क्लास हम करते हैं, अगर हम ज्यादा नहीं जानते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरी भाई इक्विपमेंट जो है उसे 4 घंटे चलेगी। फाइंड कर सकते हैं। होता है कि आपके जो क्रेन का, उसके एक्सेसरीज का जो लाइफ है वो इस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से क्रेन मैन्युफैक्चरर अपना डिजाइन करते हैं कि इस हिसाब से हम करेंगे तो ये इतना दिन चलेगा, इस हिसाब से करेंगे तो इतना दिन चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपने दिमाग से एक माइथ को हटा दीजिए, बहुत ज्यादा लूंगा, ये लूंगा, ऐसा लूंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आज capacity crane and you are going to work is going to be 8 with this and that is to be 7 ton or 8 ton, you can go for 1 year for 8 ton. Okay, आप 8 ton का मुझे दे दो, मैं इसको चलाऊंगा, मेरा आगे एक्सपेंशन हो रहा है। That is your wise decision. उसी तरह क्लास ऑफ ड्यूटी में अगर मेरी काम 2 घंटे की है या 3 घंटे की है या 8 घंटे की है, डिफाइन करें कि मेरी क्रेन दिन में 8 घंटे कंप्लीट चलेगी। गाड़ियां मेरे यहाँ लगती रहती है, उस पर से मटेरियल उतरता रहेगा, एक तरफ लोड हो रहा है, दूसरी तरफ अनलोड हो रहा है, तो ये हमारा चलता रहेगा, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो क्लास ऑफ ड्यूटी हम जरूर लिखें। उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वाइज, जो कि हमने बात किया था कि जैसे 20 टन की हम एक क्रेन लगा रहे हैं, बट मोस्ट टन की क्रेन हमारी जरूरत नहीं है, हमें 5 टन 7 टन की भी जरूरत भी लगा लेते हैं कि 20/5, जो कि हमारे वीकली 1 दिन 2 दिन जरूरत पड़ती है, या 1 दिन once in a, you can find out with your application and your requirement. तो ऑक्सिलरी वाइज को आप उसमें, तो वो हमारे लिए यूज में होता रहा, कोई ऐसी छोटी जरूरत हो तो। For that we can say, you can save that electricity and other maintenance cost also by using that small capacity. Next, after 2-3 slide will share you suggestion for this auxiliary waste also. Then
Another point is coming platform requirement. Is required platform. If not, please don't add in your project in your inquiry sheet. Platform is not required. Only that maintenance platform is required. That corner side one small platform for maintenance this or your crane. Someone is requiring that complete full cross table span size platform for maintenance of the lighting and other things. So if required, you can opt, otherwise you can. Then second is coming building design. हम तीन तरह कर सकते हैं, तीन वे हम इसमें लिखे हुए हैं, क्रेन वेज एंड व्हील लोड। क्रेन का वेट हमारा कितना हो रहा है अकॉर्डिंगली, बिकॉज जब हम पीवी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो हमसे वो पूछता है कि खंबे में आपका कितना लोड होगा, हाउ मच इज ईच of your complete state, including this EOT crane also. So you can discuss and you can share that crane weight and wheel load. This much is wheel load, this much is capacity of crane. Then building height. Increase your building height. There are so many ways to reduce your height of crane. Low headroom, fish belly type. We have made some additional feature with our crane, which can be reduced, which can be flattened to reduce your height of, and by this you can reduce your height of build. बना सकते हैं हम अपने क्रेन मैन्युफैक्चरर। मेरी हाइट अगर 12 मीटर है और मेरी बिल्डिंग की हाइट अगर 14, आप मुझे सजेस्ट करें या कोई इसके लिए कुछ ऑप्शन है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि लो हेड रूम में हम जाएंगे, फिश बेली टाइप में जाएंगे, या बहुत आपको वो बताएंगे। आपको ना तोड़ने की जरूरत है ना उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट उतने में ही पूरी हो जाए, आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए। 8 व्हील डिजाइन, मैक्सिमम जो क्रेन मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग 4 व्हील डिजाइन करते हैं, 4 व्हील की, 4 व्हील की। अगर हम 4 व्हील करेंगे तो व्हील मेरी बड़ी होगी, उसको मैं शेयर कर देता हूं अगर 8 व्हील में, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, का हमें बेनिफिट मिलेगा, तो हम उस पर भी जा सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्लियर कट हो जाता है कि आपने क्लाइंट को सप्लाई करना है, देना है किसी प्रोजेक्ट में, और आप हमसे क्या चाहते हैं। इसमें 4 पैरामीटर हमने लिया है, मेजर पैरामीटर्स जो हैं उस पर हम बात करेंगे। पहला चीज की स्कोप, स्कोप इन द सेंस की क्या देना चाहते हैं, और उसी चीज के बारे में आप क्रेन मैन्युफैक्चरर्स, इसमें मैं ये चीज करना चाहता हूं, तो कोई आदमी बोल देगा कि ठीक है, आई विल कंप्लीट दैट। समवन विल से कि नो नो, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं 60% करूंगा। तो इसमें तो जब आप सारे से ले लें तो देखें कि इसमें कौन हर चीज कर सकता है। हमारे स्कोप में क्या होगा, क्लाइंट सप्लायर के स्कोप,
जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिप क्रेन का। आपने किसी प्रोजेक्ट में जिप क्रेन लगाना है, तो जिप क्रेन वर्क and that is civil work. So most of the crane manufacturers are not accepting any civil work. तो उस टाइम में वो आपको स्कोप में लेना पड़ेगा कि ओके सिविल वर्क इन माय स्कोप, मैं उसमें फाउंडेशन कर तैयार कर दूंगा, बेस प्लेट ना, उसके बाद हमारी उसमें जिप क्रेन फिक्स हो जाएगी। तो ये स्कोप डिफाइन होना चाहिए कि मैं सिविल वर्क मैं इसमें करने जा रहा हूं, आप ये काम करके, क्लियर होना चाहिए। सेकंड आता है, बिकॉज मोस्टली दैट पीईवी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, दे आर एडिंग दैट गेंट्री गटर ऑन द टॉप ऑफ द, उसके बाद से समटाइम वो स्कोप में होता है कि दैट रेल डीएसएल एंड क्रेन इन मैन्युफैक्चरर स्कोप गेंट्री गटर भी आप गेंट्री गटर देते हैं। अगर नहीं है गेंट्री गटर, क्लियरली स्कोप में मेंशन है, तो प्रोवाइड अस गेंट्री गटर। फॉर गेंट्री गटर you have to provide that column to column distance also. So this is the distance between one column to another column. Then insert plate. Insert plate is also a costing things, but not a major impact. But किसके स्कोप में है? इंसर्ट प्लेट हम कहां लगाते हैं, जो कि गेंट्री गटर फिक्सिंग करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। और आप हमसे गेंट्री गटर मांग रहे हैं, हम तो गेंट्री गटर दे रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो कि आपको इंसर्ट प्लेट भी चाहिए, तो उसको स्पेसिफाई कर लीजिए, प्लीज क्लियर कर लें। देन आता है साइट कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्क के एक्सक्यूजन के लिए, प्रोजेक्ट के एक्सक्यूजन के लिए। साइट कंडीशन कैसा है आपका? आज के दिन में हम बात करें तो हमारे पास अगर हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं और आपको बिल्डिंग बनाना है, देन इंस्टॉल होगा, ये सारा चीज हमें सेट करना है। बट आज के दिन में वो एक प्लेन एरिया है और हमने अपने जो चीज हमें लेना है, हम सबको परचेज कर रहे हैं, सबके लिए हमने दे दिया, बिकॉज कोई हमें 6 महीना में मिलेगा, कोई 1 साल में मिलेगा, कोई 10 दिन में मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली हम उसको ऑर्डर करेंगे। तो साइट कंडीशन देख के ही हम ऑर्डर कर क्या बनाने जा रहे हैं, अगर हम पीवी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या सीमेंटेड बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपने सप्लायर को ये सारा डिटेल हम भेजें कि आपको इसमें ये करना है, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो 4-5 चीज है, ये भी आपके कॉस्ट को इफेक्ट करता है। देन इट्स कम टू लास्ट बाइंग डिसीजन। इसमें क्या चीज है? 5 मेथड टाइमली डिलीवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्रोजेक्ट में सपोज एक क्रेन आपने दिया मुझे ऑर्डर कि ये क्रेन मुझे चाहिए, इंक्वायरी दिया, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, अब नाउ वी आर नेगोशिएटिंग कि आप इसको डिलीवर कितने वो फाइनलाइजेशन के बाद से विद इन 1 day I will receive your order. After order it will go for engineering, it will create drawing and all engineering things to be added in that, and that will send to you for your approval. How long time you will take for approval, that I don't know, you have to decide yourself. Okay, from that day, after receiving that drawing and technical data and other things, it may take for 15 days. You can add this also. 10 days for order, 10 days for drawing submission,
15 days for approval, then another 10 days. If any rectification is required and approved by again, resubmit by us, and that also with 10 days. So that means around 35 to 40 days it will take. After receiving your approval and manufacturing clearance, only that will go for manufacturing. So after your audit, it will go for manufacturing. Ab manufacturing mein it will take that 4 months, 5 months, 6 months as per capacity of crane and requirement of your need and so it may take this 3 months, 4 months also. So you can aid this and accordingly as per your plan and requirement at the site, at the project, you can agree. Note that ki your building is going to be a start and you are asking crane mujhe de do. In 1st May, you are going to be inaugurate your building and you are asking कि मुझे 5 मई को तो always keep this all things in mind before buying this all things. Then quality is the major things. क्वालिटी एक ऐसी जरूरत है जिसके बुनियाद से ही हमारा काम शुरू होता है. थोड़ा भी ढीला होंगे हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. क्वालिटी में हम किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं चाहते. कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे जरूरत है, मुझे ये कर दो, मुझे इसको छोड़ दो. प्लीज उसके लिए आप उनको मत बोलें कि आप अपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज करें. कि one supply make your relation for long life because we are dealing with capital goods. कि आज अगर हमें इस एक एजेंडा होता है कि मैं अगर आपसे जुड़ूं तो लाइफ लॉन्ग तक मैं जुड़ूं. प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 10, प्रोजेक्ट 20, प्रोजेक्ट 50. मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनसे मैं 86, 76 ऐसे जुड़ा हुआ हूं. ऑलस्टम जी से मैं 86 से जुड़ा. एलएनटी से मैं 91 से जुड़ा हुआ हूं और रिपीट ऑर्डर आता है. रीजन मैं उनको जो क्वालिटी चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता हूं. हमें उनकी टेस्ट पसंद है, उनको हमारी टेस्ट पसंद है. तो ये रिलेशन हमारे, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे. सपोर्ट हमने क्रेन आपको दे दिया बट उसके बाद भी उसकी जो भी हमें जरूरत है. अगर कोई कंपोनेंट, कोई एक्सेसरीज आपको चाहिए, खराब हो गई है, आप कहां से लेंगे? दूसरा बोलेगा आपने तो क्रेन रेवा से लिया है तो आप मटेरियल भी उसी से लो. तो ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट है कि नहीं, जिसे हम परचेज कर रहे हैं, बैकअप हमारा है कि नहीं है, कि इन फ्यूचर वो मुझे सपोर्ट दे सकता है कि नहीं. मे बी दैट सर्विस सपोर्ट, मे बी दैट एडिशनल अदर सपोर्ट फॉर एनी अदर कंसल्टेंसी और एनीथिंग, एनी माय रिक्वायरमेंट. या फिर वो बेच के भूल गया, मुझे चला गया. नेक्स्ट पॉइंट कम. अभी मैं वही बात कर रहा था कि मैं क्रेन बेच के और कहीं गायब कर रहा हूं और कब तक रहूंगा.
एटलीस्ट आपके माइंडसेट में पहली बार तो ये सेट होना चाहिए कि मैं जिससे डील करने जा रहा हूं वो कौन आदमी है, कैसा आदमी है, उसका फीडबैक क्या है, ये सब चीज उसके पास है क्या चीज, इन सब चीज का इवेलुएट कीजिए। दो लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं आप पता कीजिए, ओपनली पूछिए। देन नेक्स्ट टेक्निक क्या क्या दे रहा है हमें, कितना एक्सपर्ट है, उस पास क्या क्या फैसिलिटी है, वो हमें है। या फिर मैं जो बोल रहा हूं मेरी जरूरत है, सारे चीज में हाँ कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी दे दूंगा, एंड जब देने का टाइम है तो बोलता है ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। द एंड ऑफ द मोमेंट तो यू मस्ट डू दैट टेक्निकल इवेल्युएशन कि उस सप्लायर का वैल्यू क्या है मार्केट में, उसके पास क्या क्या चीज है, उसके पास टेक्निकल इफिशियंसी कितनी है, एक्सपर्टीज कितनी है, उसके पास जो बंदे काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। यू मस्ट विजिट। आप पहले चलाना है, यू मस्ट विजिट वंस टाइम, एक बार आप जाएं, घूम के आ जाएं, चल जाएगा सर। जी, तो अब इस बारे में मैं पूछूंगा कि इसमें और कोई कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। सर द्विवेदी साहब, जी सर। सर एक चीज बताइए, बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा डस्ट प्रोन एरिया है, जैसे क्रशर जी हाउस हुआ। जी सर वहाँ के लिए हमें कुछ सोल्यूशन बताइए कि मतलब वहाँ की वॉइस हम लोग से मेंटेन हो नहीं रही। इनफैक्ट आप लोग की हेल्प तो खैर हम लोग ले ही रहे हैं, उसके लिए कुछ आगे हम लोग स्टेप बढ़ा रहे हैं। जी तो उसके लिए सर मतलब कुछ ऐसा कुछ पास सोल्यूशन की मतलब कुछ डस्ट से इन इक्विपमेंट को बचाया जाए सर, ऐसा कुछ। सीएचपी में तो ऑफ कोर्स डस्ट तो है ही, जितने भी सीएचपी है, कोल हैंडलिंग और चलिए सर मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा उसके लिए, नहीं सर नहीं कोई कोई बात नहीं, मैं अभी हाँ बताता हूँ, अभी अच्छा बताता हूँ अच्छा। आपको, अभी बताता हूँ आपको। हाँ लीजिए बताइए। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। जगह पे जो कोल हैंडलिंग प्लांट होती है वहां पे एस फ्लाई करती हैं और वहां पे वायस्ट हो या ईओटी क्रेन अगर लगी तो जो जी उसके जी मैकेनिकल कंपोनेंट्स है सर, जो कि ओपन रहने वाले हैं, जी जी उनमें तो उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं कुछ दी जा सकती है। बट जो मेजर इशू आती है कंट्रोल जी पैनल में आके होती है, अगर हाँ वहां हाँ एक हाँ बार डस्ट अगर कलेक्ट होता है या अदर इलेक्ट्रिकल जो apparatus है और इक्विपमेंट्स है, उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और वंस प्रॉब्लम अराइजिंग तो फिर बार बार आता है प्रॉब्लम। जी तो जी वहां पे हम इसके लिए अपने जो ये बहुत अच्छा, हम जो सीएचपी क्रेन होंगी, सीएचपी होस्ट होंगी, उनके लिए कोशिश करते हैं हम कि वहां पे जो प्रोटेक्शन लेवल है, जो इनग्रेस प्रोटेक्शन है हमारी पैनल्स की और इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट की, उसको हम हाई लेवल पे ले जाएं। एटलीस्ट 55 से नहीं हो तो 65 पे ले जाएं, ताकि उसमें डस्ट ना हो। दूसरी एक जो प्रॉब्लम होती है, मैं बताता हूँ कहाँ पे होती है, में भी किया हुआ है। जी जी इशू ये आती है कि जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है वहां का रेगुलर जो करते हैं उसको, बट जो प्रॉपर जो उसकी वापस से उसको छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे सेवरल अपने एनटीपीसी में विजिट करने पे पाया कि वहां पे जो बॉक्स लगी होती है, बॉक्स का जो डोर होता है ना, डोर को जी प्रॉपर जी क्लोज ही नहीं किए, छोड़ दिए वैसे ही। आइदर वो बांध दिए या फिर ऐसे लगा के कुछ से स्ट्रिप कर दिए। तो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, उसमें आपको इशू आएगी ही आएगी। आप अगर अच्छे प्रोटेक्शन का भी ले लेते हैं, IP65 और 66 का, फिर भी तो एक आपकी फीडबैक बहुत अच्छी रही कि हम स्पेशली सीएचपी वास्टो के लिए स्पेशली हम प्रोटेक्शन लेवल पे अपने डिजाइन में बात करते हैं, हम एक लेवल का हाई दें। दूसरा चीज जो आ रहा है इंपॉर्टेंट, कि आप अपने मेंटेनेंस जो स्टाफ है आपके प्रोजेक्ट के, एंड यूजर हो या आपके थ्रू हो, उस सर मेंटेनेंस स्टाफ की कोई भी पैनल बॉक्स को ओपन ना रखे।
बाकी Okay. मैकेनिकल पार्ट्स के लिए भी हम कुछ ना कुछ इस पे सोचेंगे, अपनी डिजाइन टीम से इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर। एंड Okay, थैंक यू okay, okay. थैंक यू वेरी मच सर, ये आपकी बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक। ओके Thank you, सो thank you. वेदी सर करेंगे, और इस तरह की कुछ भी क्वेश्चंस आती है तो आप क्वेश्चन जी, हमें पता चलते रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल यही सर, बिल्कुल, सवाल thank you, कल sir. पूछा था चौधरी साहब ने भी। होगा। हाँ राइट सर, राइट। हाँ, और दूसरा एक है कि उसको हम अगर वॉल माउंटेड रखेंगे तो हमारे लिए उसका 10 से हम कुछ बचा सकते हैं। जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, इस स्लाइड और इससे अभी तक जो हुआ है उसमें? एनीवन? ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। जैसा कि हम पीछे बता रहे थे कि स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, जो कि स्पीड जो हमारी होती है, सपोज एग्जांपल देता हूं कि एक 5 टन की क्रेन है जिसकी मेन की, और एक 10 टन की क्रेन है जिसकी स्पीड 3 एमपीएम है। कॉस्ट वाइज देखेंगे तो मे बी दैट 10,000 20,000 ऊपर नीचे, बट कॉस्ट वाइज हम देखेंगे तो दोनों का लगभग एक होगा। ये फर्क पड़ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ व्यू से एंड रखता है, क्योंकि उससे आपका इक्विपमेंट का डायमेंशन भी बड़ा होगा, सब चीज बढ़ जाएगा, सब डबल हो जाएगा। जस्ट अगर स्टैंडर्ड स्पीड 3 की है और मैं 6 की मांग रहा हूँ, 6 की, तो वो सारा चीज इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप स्लाइड को देख रहे हैं। hoist with 6 mpm speed, cost will be same as the 10 ton hoist. Should be decided as per application. Maintenance hoist does not require 6 mpm, क्योंकि एक तो hoist हमारे डेली यूज में है, एक मेंटेनेंस पर्पस से हम लगाते हैं। We are using for maintenance purpose, and that is to be used only that any end of the day once, or maybe that weekly, fortnightly, half yearly, quarterly, like that. So that is not required, that 6 mpm speed and 10 mpm speed. You can go for a standard speed. Same thing, selection of capacity we have talked. Avoid undue margin. Same thing we have discussed. If it's required for margin, that manufacturer and designer, this all take IS. This all margin taken by technical person as per the IS. So need not to worry. आप उसे मेंशन करें कि मुझे इतने की जरूरत है, मुझे इतने टन की क्रेन चाहिए। Maybe that you can opt for, suppose your requirement is 6.75. That's all. Not leave this. Not more than half ton. Same thing, next point, class of duty. Selection to be based on application as per your uses per hours, and in a day, how much hour you are using that. First, we are talking with sometimes is required weekly or fortnightly 20 ton load, and every day you require that 3 ton. It is not wise. You can lift your 3 ton load with the 20, because once cranes is operated,
started, that all machine will come live, and that other things, other losses, and reduce the time period for your equipment, that can be avoided, that can be reduced. By this, we have made one technology, Reva Crane Brain. In this, you need not to add your additional auxiliary voice. We are talking that 20-ton Reva Crane Brain, that 5-ton you can avoid it. Need not required 5-ton also. With 20-ton, with this technology, you can avoid that auxiliary voice purpose or uses. By using, once you are operating and lifting the load of 5-ton, that 20-ton crane will be work as a 5-ton. Whatever cost implication in the 5-ton hoist, by using that normal 5-ton hoist, that can be beared. वो हमारा 20-टन 5-टन का क्रेन बन जाएगा, उतना ही बिजली उसमें खपत होगी जितना कि Okay, sir. जी. Next is the platform. Same platform we have asking for maintenance, especially for crane up to 30 ton. Up to 30 ton crane, up to 25, 30 ton crane need not require that full platform. Ton, both sides. One side only required. Anything you want to ask in this? Discuss. Use accurate crane weight and wheel load to design your building. Factor, there are all taken into account of the standard. Opt for crane with lower dead weight. Reduction in building height. The more the building higher, the higher the cost goes. Opt for low headroom डिजाइन क्रेन एंड होइस्ट. लो हेडरूम पर आप ऑप्ट कीजिए, उस पर जाइए. ऑप्ट फॉर लोअर साइड क्लियरेंस क्रेन डिजाइन. देन ऑप्ट फॉर 8 व्हील डिजाइन क्रेन्स. ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक लो हेडरूम डिजाइन क्रेन है. कि जिसमें कि इंड अप्रोच हमारा ज्यादा है, मैक्सिमम हम अप्रोच हम ले रहे हैं इसमें. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम अप्रोच तक हम जा रहे हैं, यहां तक आखिर तक हम जा रहे हैं. एक एडिशनल एक डिजाइन है जहां तक कि हम लास्ट तक जा पा रहे हैं, मैक्सिमम जितना हमें जाना चाहिए. इंड अप्रोच यहाँ पर आ गया. एक आपको बताया था हमने कि फिश बैली टाइप, जो अभी हम बात कर रहे थे, इसमें 8 व्हील डिजाइन हम आपको दिखा रहे हैं. 8 व्हील में कितना इजीली एंड साइज भी इसका है वो मिनिमाइज हो जाता है. अब हम आते हैं परचेज. इसमें जो स्कोप में हम बात कर रहे थे पिछली बार, लास्ट 2-3
कि इसमें स्कोप क्या कहता है, गेंट्री गडर प्लेटफॉर्म अलोंग विथ गेंट्री गडर। क्या आपको जरूरत है कि गेंट्री गडर चाहिए भी चाहिए या गेंट्री गडर केवल चाहिए या दोनों चाहिए, ये आपके स्कोप में क्लियर होना चाहिए। एलटी रेल आप सप्लायर के स्कोप में डाल रहे हैं या आपके स्कोप में पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ये भी एक आपके कॉस्ट पर इफेक्ट डालता है। अगर मान कर लिया कि मुझे हमारा इक्विपमेंट एफओआर साइट चाहिए, मुझे साइट पर चाहिए, आप मुझे देवास या उस टाइम में बोल रहे हैं कि नहीं फ्रेट आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, द टाइम योर इक्विपमेंट विल बी रेडी, मैं आपको गाड़ी वहां पर लगवा दूंगा, आप फ्रेट वो मेरी गाड़ी। अब इसमें क्या होता है नुकसान, आपके तरफ से इंस्पेक्ट हो गया, आपके तरफ से हर चीज आ गया, हम रेडी हैं, बट यू आर अनेबल टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट टू अस। अब 3 दिन 4 दिन हमारे पास, और आपको पता है कि ये ह्यूज इक्विपमेंट है, काफी स्पेस कैप्चर करता है, हमारे हो जाता है कि हम इसको अब तैयार हो गया तो इसको हम जल्दी से गाड़ी पर लोड करें। तो ये जो 3-4 दिन का टाइम है, उसके बाद से नेगोशिएशन में हो सकता है कि समटाइम आज के दिन में हम कर रहे हैं तो प्राइस में भी वो मनमर्जी चाहेगा, तो मैन्युफैक्चरर के इंड में डालते हैं, सप्लायर के इंड में डालते हैं, आप फ्री हैं। अदरवाइज आप अगर अपने जिम्मे रखते गया, अब जो आपका जो वहां पर करंट जो इलेक्शन कमीशन की टीम है, अब वो निकालेगी ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, ऐसा नहीं है, वो 4 चीज निकालेगी, वो 5 चीज निकालेगी, तो वो भी आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आपके सब चीज हमने ले लिया, ओके, मंकी लेडर हमने छोड़ दिया, वो मिनिमम कॉस्ट है, 20,000 25,000 का आइटम है एक मंकी लेडर, बट आपने सप्लाई नहीं हुआ और मंकी लेडर आप भूल गए, बाद में बोल रहे हैं कि मुझे एक मंकी लेडर दे दो, 50,000 फ्रेट, तो ये सारे कॉस्ट को इंपैक्ट करता है। आइसोलेटर स्विच एंड केबल फ्रॉम आइसोलेटर स्विच, आपने उसमें मेंशन नहीं किया, केवल आपने हमसे डीएसएल मांगा। स्कोप इनकमिंग पावर सप्लाई आपने दे दिया, हमें इलेक्शन कमीशन भी हमें कर, बट पावर सप्लाई आप वहां नहीं दे रहे हैं, और ये आपने बताया नहीं कि पावर सप्लाई आप ही को देना है, तो फिर तो मैं वहां पर जनरेटर हायर करूंगा, वो खर्च बच गई, वो उसमें एडिशनल ऐड हो गया जनरेटर के कॉस्ट, बिकॉज पावर सप्लाई वहां अवेलेबल नहीं है, हमारी टीम वहां पहुंच गई है, सब चीज पहुंच गई है, वो तो आपको करना था तो हमने करना था, तो ये स्कोप में क्लियर होना चाहिए कि विल प्रोवाइड पावर सप्लाई। देन जब ये कमीशन हो जाता है, उसको फाइनल कमीशनिंग में लोड टेस्ट करना साइट पर प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर आप उसमें मेंशन किए हुए हैं कि लोड टू बी प्रोवाइडेड बाय यू, सीलिंग्स टू बी प्रोवाइडेड,
तो हम उसका अरेंजमेंट करके जाएंगे। होना चाहिए कि साइट स्कोप में मेंशन है कि नहीं है और वो काम कौन करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि सिविल, उसी तरह लोड टेस्ट भी, लोड एंड सीलिंग इन योर स्कोप, ये स्कोप में क्लियर होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा साइट कंडीशन। इसमें सबसे फर्स्ट थिंग है फ्लोरिंग। अगर जहां हमारी क्रेन लगनी है वहां पर फ्लोर नहीं बना हुआ है, कच्चा है या पत्थर कंकड़ है या कुछ लोहे सरिये लाइंग दिया, उसमें हमारा क्रेन हम कैसे मूव करेंगे, कैसे हम उसको इरेक्ट करेंगे। तो हमारी टीम तो वहां 10 दिन जाके बैठ जाएगी, 20 दिन जाके बैठ जाएगी, नील है, जीरो। इन दिस कंडीशन अगर आप एक बार मुझे कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सभी चीज तैयार है, इंटैक्ट है, अब आप अपनी टीम को भेजिए। श्योर करता हूं कि मेरी जो इरेक्शन कमीशन टीम जाएगी वो आपको मशीन को चालू करके हाथ दे के आपसे टेस्ट करा के फिर वहां से निकलेगी। या 4 बार वो नहीं जाएगी। रूफ ओपन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ईओटी क्रेन। अगर कंजस्टेड एरिया है, मुझे अपने क्रेन को ऊपर से डालना है तो ऊपर नहीं, ये सारा चीजें ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। साइट आपकी रेडी होगी तभी, जबकि इस कंडीशन में मैं वैसे डालूंगा। हम गेंट्री क्रेन लगवा रहे हैं तो वहां नीचे लेवल होना चाहिए ताकि हमारी रेल सही से बिछ सके, उस पर हम सब चीज काम कर सकें। पावर सप्लाई अवेलेबल एट सेट, हमारी पावर सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए। लेट इट बी वन पॉइंट or maybe center or maybe your control panel, one power supply should be available there. अब एक चीज है, आपने ऑफर ले लिया, इंक्वायरी ले लिया, इंक्वायरी दे दिया आप। आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग, इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम, you must in your mind, बोलते ना कि मैं ठगा ना जाऊं, we should not be cheated. This word is not appropriate, but I am using these few points we have right here. Vendor evaluation, whether he is taking that order for 100 tons crane, is there any facility available to produce that 100-ton cranes? What is the previous track record? क्या उसने 100 टन की क्रेन बनाई है? Is there any suitable technical manufacturing team, those who are going to exclude this thing? For exclusion, we have to find out this all things. So those who are manufacturing facility, track record by, you can ask that performance where you have supplied, but client is okay, is good. Once he can supply already 100 ton, why not 50 ton? There should not be any.
If they are providing that complete technical details, drawing and other things, which is as per your requirement, okay, well and good. Suitable technical team as per my requirement, as per our project requirement. You must evaluate yourself and weight accordingly 1, 2, 3, 4, 5. If you are comparing with 3, 4 supplier, you can must write that weightage. Suppose you are purchasing that big span crane, more than that 20 meters, which is not advisable to go with one lorry. But is more than 80 feet हो रहा है हमारा, अगर 30 मीटर का is 30 meter, that may be that 92, 94, 95 feet. How it will go? So make it split in 2 or 3 parts, 2 on 3 piece, accordingly as per technically suitable. Maybe that 12 meter, other piece is 8 meter, another piece is another 12 meter. Like that they can make it there, as per technical suitability. Whether he is capable or not. Because after splitting there are so many things. We have to join again. We have to make arrangement for that also. Next is coming unloading, storage area, watch and ward is defined in the contract. Unloading in your scope, storage area, watch and ward, this all to be defined. Transfer of the crane from the store area to installation place. Maybe that your project size is 2 kilometer. 2 kilometer of radius your project size. Your office and store was there initially, that build your store and offices, and maybe that crane is going 1.5 kilometer from that your office or your store. You have to make arrangement, or you have to define. You have to define that shifting of material from your store to site in whose scope, किसके जिम्मेदारी हो. बिकॉज ये छोटा आइटम नहीं है कि हम झोला में लेके चले जाएंगे. अब एक और पॉइंट कराते हैं आपसे. तो इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आते हैं, तो क्या ये किसकी जवाबदेही है? इंस्पेक्टर किसकी जिम्मेवारी है? आपके तरफ से इंस्पेक्टर आएंगे या मुझे अरेंज करना है इंस्पेक्टर को? ये सारा चीज डिफाइन होना चाहिए. आपके एंड यूजर आएंगे या कौन आएंगे, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा. ये भी स्कोप में मेंशन होना चाहिए, जिससे कि इन कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपके डिलीवरी में points to be taken during execution of the EOT cranes manufacturing. Delivery of crane matching with आपकी साइट की रिक्वायरमेंट क्या है,
उस हिसाब से हमारा जो ऑफर आया है वो सही है कि नहीं है। क्या उसमें ड्राइंग और डॉक्यूमेंट है, ये जरूर देखना है। ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंट के लिए एक मिनिमल डॉक्यूमेंट चाहिए जो स्टैंडर्ड। आप जितने बढ़ाते जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को वो उतना ही लंबा खिंचता जाएगा, अप्रूवल में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। स्टैंडर्ड ड्राइंग में एक ड्राइंग हो गया का, मैकेनिकल का, एक क्यूएपी हो गया। आप इन चीज को लीजिए, अप्रूव करके दीजिए, काम आगे बढ़ाइए। अगर आपने 50 दे दिया तो 50 में एवरी डे यू विल सी दैट कि 5 उसमें से कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन रिसीव हो रहा है, ये नहीं है जी, ये नहीं है जी, एंड दैट इज जस्ट माइनर थिंग्स टू हार्म और हैपन एनीथिंग। वो आपके लिए कोई ये नहीं है, बट उसके एक पॉइंट के लिए हमारा बेस्ट होगा। सो मिनिमल डॉक्यूमेंट्स, आप जितना कम से कम डॉक्यूमेंट में करेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा, उतना ही जल्दी आपको मिलेगा। जितनी आप अप्रूवल दे देंगे उतना ही जल्दी आपका काम शुरू होगा। साइट एक्सेसिबल फॉर द क्रेन इंस्टॉलेशन, ये सारा चीज क्लियरेंस हमने पीछे डिस्कस किया है। लेट टेम्पोररी और परमानेंट पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई वहां है या नहीं है, वो टेम्पोररी अरेंजमेंट है या फिक्स है या परमानेंट है, जो भी है वो सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, इसके स्पेक्ट को रखना है। में आता है परचेज की तरफ से, सेम इसमें वही आता है। एक टाइमली डिलीवरी के लिए परचेज के व्यू से हम देखें तो हमें 2-3 चीज हमें ध्यान में रखते हैं। एक तो हमारे टेबल प्राइस हो, टाइमली डिलीवर हो एंड गुड क्वालिटी हो। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट मिले। ये एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक नीड। मैं बेसिक नीड पर बात कर रहा हूं कि मुझे एक सही दाम पर सही चीज मिल जाए, सही टाइम पर डिलीवर हो जाए, अच्छी क्वालिटी का चीज। ये सारा चीज हमें ध्यान में रखना है। उसके लिए 2-3 पॉइंट हमने लिखा। टाइमली डिलीवरी के लिए क्या है, वेंडर एवल्यूएशन, जो मैंने बताया कि वेंडर को आपको देखना पड़ेगा कि कैसा वेंडर है, क्या है उसका। देन डिजाइन स्ट्रेंथ, उसके पास टेक्निकल वो कितना स्ट्रांग है, उस पास क्या क्या फैसिलिटी है। उनकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनके पास क्या है, कितने मशीन है, कितने इक्विपमेंट है, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने ऑपरेटर्स हैं, कितने सुपरवाइजर। आप साइट पर जाएंगे तो रन कर रही है, तो मतलब फैसिलिटी है, हर के पास काम है, मतलब ये क्या उनका ये है, वो कैसे कराते हैं, उनके पास टीम है कि नहीं। आज के दिन में मैं बताऊं कि मेरी आज के दिन में 29 साइट लाइव है इलेक्शन कमीशन की। 29 साइट लाइव है इलेक्शन कमीशन की। तो इतनी टीम होनी चाहिए, आपको जरूरत पड़े जब तो बंदे आपको मिल जाए, मे बी दैट 2 days 3 days 4 days और ए वीक के भी विद इन ए वीक हमारा साइट रेडी है। इन्फॉर्म ओके नेक्स्ट वीक आवर पीपल विल बी डिप्यूटेड फॉर दिस जॉब।
quality deliveries directly proportional to company. का जान होता है हार्ट क्वालिटी, उसको मैं कभी बाईपास कर ही कुछ भी नहीं है। गियर सोप है कि नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट है कि नहीं है। कितने प्रोफाइल ग्राइंडिंग है, कितने मिग वेल्डिंग है, कितने सॉ वेल्डिंग है, कितने टिक वेल्डिंग है, कितने क्वालिफाइड वेल्डर हैं, क्या शॉर्ट ब्लास्टिंग हो खुद कर। ये चीज देने के बाद हमारी जो टीम जाती है वो आपके टीम को, आपके मेंटेनेंस टीम को 2 डेज पूरा ऑपरेशन की ट्रेनिंग देती है। हम उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं ऑपरेशन का। सपोर्ट, how many manpower for customer support? If you are calling after receiving my equipment and I am not my phone is not lifted by anyone, how you will feel, how you will, mail is not responded because there are no any after sale, there is no any because that required separate things, separate team. So you must find out that previous certificate. What is the opinion of other client? Where उनकी क्या जवाब है, उनका क्या रिस्पॉन्स है हमारे हैं। नेक्स्ट इज कमिंग सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सिस्टेंस। कब से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में? इफ यू आर आस्किंग टू मी, आई एम वर्किंग एज ए 58 years. How many spares are available? 90% spares available. 10% only mechanical spares required, which is to be manufactured after your order and after your drying. And evaluate the offer technically against that specs. We are going, because we have discussed, just will go some fast so that we can discuss with you also. You can make that column supplier 1, supplier 2, supplier 3 in Excel sheet. You can find out the feature and compare 1, 2, 3, 4, or how many. Minimum 3 we have mentioned. Correct and optimize rate, optimize and lightweight product, failure analysis to eliminate any cause of
इन सारी चीजों फ्रैक्चर के लिए वो क्या टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, एज पर एफईएम करते हैं कि नहीं करते हैं, इन हाउस वो क्या क्या उनकी डिजाइन जो इंजीनियरिंग है वो इन हाउस है 100% या 40% इन हाउस है, बाकी 60% वो कहीं आउटसोर्स रखे हुए हैं, जो कि हमने मेक इट लाइक कर दिए। उनके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो क्या यूज कर रहे हैं, उनकी जो एक्यूरेसी है वो कितना है, वो कैसे वेरीफाई करते हैं, हाउ दे आर मैचिंग, हाउ दे आर वेरीफाइंग दैट, what are the way they are using this, hoisting gearbox, we are having our own gearbox manufacturing, we are manufacturing our own gearbox, हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए हमें अपने इक्विपमेंट पर इतना भरोसा है कि बोलते हैं कि हमारे 20 से 25 साल तक हमारा कुछ भी इक्विपमेंट को कुछ नहीं होगा, भरोसा है इसमें। हम gradual contact, better ascending more number of teeth in contact at a time, ये सारी चीजें वैल्यूएशन पर आपको मिलेगा, उसको आप अप्रूव कर सकते हैं या आप उसको ग्रेड दे सकते हैं। लो कार्बन एलॉय स्टील्स है, अब इसमें बेटर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो क्या दे रहे हैं, दूसरे क्या दे रहे हैं, फेल सेफ है, वियर रेजिस्टेंस, लॉन्गर लाइफ है, गैस कार्बोराइजिंग एंड केस है, हार्डनिंग ऑफ 55 to 60 HRC, वो कितने HRC तक हार्डनिंग करते हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, मटेरियल का हम थोड़ा कंपैरिजन कर लें, जो कि हम सब जानते हैं कि गियर बॉक्स के लिए प्रोफाइल ग्राइंडिंग एक वरदान है। जहां हम प्रोफाइल ग्राइंडिंग यूज करते हैं उस गियर बॉक्स का लाइन जस्ट डबल लाइफ हो जाता है। तो हम उसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है। उसके बाद से बेरिंग लाइफ क्या वो दे रहे हैं, कौन सा बेरिंग यूज मार्केट में, सही नाम के डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है बेरिंग की। मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बेरिंग लेता हूं टू प्रिवेंट द डुप्लीकेसी, बिकॉज वही मैं ट्रेडर से लूंगा या नहीं, के लिए मैं डायरेक्ट उससे ले रहा हूं मैन्युफैक्चरर से, उनका क्या सोर्सेस है ये हम आप सबको पता है। बॉल रोलर बेरिंग हो गया हैं, बिकॉज टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, बट ये बताने के बाद में मोटर्स में वो कौन सा मेक ले रहे हैं, कौन स्पेशल क्रेन ड्यूटी मोटर हम यूज करते हैं, नॉर्मल मोटर स्पेशल वो पुल्ली और ये लगा के हम उसको क्रेन ड्यूटी नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट सप्लायर से क्रेन ड्यूटी पर्पस मोटर लेते हैं।
ब्रेक उसमें वो कौन सा देते हैं? हम डीसी उनका जो मोटर है वो ब्रेक कपल्ड विथ मोटर और नो लॉन्गर लाइफ, ये एक हमारी वो है, क्या है वो उनके मोटर में ये है? ब्रेक के साथ में मोटर अलाइंड है, कपल्ड है? इवैल्यूएट करेंगे। वायर रोप है, वायर रोप में हम क्या करते हैं? ड्रम में ड्रम हम कौन सा यूज करते हैं? हम सीमलेस पाइप यूज करते हैं फॉर बेटर स्ट्रेंथ के लिए। वो क्या यूज करते हैं? दूसरे करते हैं अपने पास इन हाउस हमारी, जिसमें कि विथ हाई सरफेस फिनिश होता है। अगर फिनिशिंग अच्छा होगा तो रोप का भी लाइफ बढ़ेगा, रोप की लाइफ इंक्रीज होगी। अगर रफ फिनिशिंग है, रोप का भी डिस्टोर्शन होगा। कपलिंग, हम कैसी कपलिंग इस बारे में हम देखेंगे। इजी टू फिटमेंट है, सर्विसिंग, हाई टॉर्क, ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ड्यूरेबल एंड फेल सेफ है, एब्जॉर्ब माइल्ड एंगुलर, ये फेल सेफ है, एब्जॉर्ब शॉक लाइफ। कपलिंग वो किस क्वालिटी के दे रहे हैं, हम किस क्वालिटी के दे रहे हैं, थोड़ा सा हम उसमें वेरीफाई कर लेंगे। व्हील्स, हम केवल जो मेजर कंपोनेंट है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। व्हील्स कौन सा वो कर रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? फाइन ग्रेन साइज ड्यू टू फोर्जिंग, बेटर रोलाबिलिटी, टर्निंग सेंटर में हम उसको सीएनसी टर्निंग सेंटर में व्हील को हम टर्न करते हैं। नो मिस अलाइनमेंट, हम कोई मिस अलाइनमेंट उसमें नहीं रखते हैं, नहीं छोड़ते हैं। नो लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड ड्यू टू बॉल और रोलर एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, उसमें कोई भी लुब्रिकेंट नहीं यूज होता है। ड्यू टू एक्यूरेट मशीनिंग, उसमें बफर स्टेबिलिटी होती है। लॉन्गर व्हील लाइफ के लिए श्रिंक फिटिंग ऑफ व्हील्स, एक्सेल लीड्स टू नोजर, हीट ट्रीटमेंट व्हील्स अप टू 36 HRC। तो व्हील का हीट ट्रीटमेंट वो करते हैं कि नहीं, क्या है उनकी? नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कंट्रोल्स पर। मोटर, उसमें कंट्रोल्स में वो क्या क्या दे रहे हैं? मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन है कि नहीं है, रॉन्ग फेज सीक्वेंस प्रिवेंशन है कि नहीं है, वेदर वी कैन से दैट सिंगल फेज प्रिवेंशन, अगर जरूरत है तो एक फेज अगर चली गई तो मोटर को वो प्रोटेक्शन है कि नहीं है कंट्रोल्स में, ओवरलोड एंड ओवर ट्रेड स्विचेस है कि नहीं है। देन क्वालिटी डिजाइन वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन सारे चीजों को रिकैप कर देता हूं। डिजाइन वेरिफिकेशन, केमिकल, फिजिकल, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फॉर रॉ मटेरियल है, उनका टेस्टिंग क्या है, वो कैसे करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ गियर्स एंड पिनियन, वो कैसे करते हैं, उनका इन हाउस का प्रोसेस क्या है। डायमेंशन कंट्रोल, वो कितना मार्जिन रखते हैं
प्लस माइनस कितने mm तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। टेस्टिंग एट वर्क, उस मैन्युफैक्चरर के पास से लोड ऑन द स्पॉट दिखा सकते हैं। DPT 100 butt belts and sampling on 100% DPT हम करते हैं बट बेल्ट का। दूसरा कितना करते हैं? बट एंड जॉइंट्स का RT टेस्ट भी हम करते हैं। क्या वो करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में मशीन कंपोनेंट, वो हम कैसे मशीन कंपोनेंट को तैयार करते हैं? क्या क्या मशीन है, हम किस मशीन का यूज करते हैं? CNC मशीनिंग सेंटर है, CNC टर्निंग सेंटर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्राइंडर्स है हमारे पास, इंपोर्टेड हॉबिंग, ये सारे हमारे पास अपने हैं बिकॉज हम खुद गियर बॉक्स बनाते हैं। तो ये बोर्स हैं, मिलर्स हैं, इंक्लूडिंग इन हाउस हीट, यूज ऑफ बफर एंड स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सबसे बड़ी खासियत है स्टेट ऑफ उस प्रैक्टिस को हम वेल डिफाइंड क्वालिटी एश्योरेंस प्लान्स इंश्योरिंग जीरो डिफेक्ट प्रोजेक्ट। एक भी माइनर डिफेक्ट आता है हम उसको सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं, नॉट इवन दैट कि हम उसको रीयूज करते हैं। हंड्रेड % इन हाउस इंस्पेक्शन है। मे बी दैट हमारा डिलीवरी उसके लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। अगर 4 वीक में दे रहा तो मैं 5 वीक मांगता हूँ। रीजन इज दैट वी आर नॉट बाईपासिंग, प्रोसेस हम करते हैं। बेटर स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी, परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, reduced vibrations, ease in fitting and जरूरत भी पड़ गई तो ऐसा बनता है जिसमें कि आपको ज्यादा हडल फेस नहीं करना पड़े, इजीली आप उस काम को कर सकते हैं। फ्रेम माउंटेड होता है, हमने फ्रेम को खोला कि उसको फिर चेंज करके फ्रेम पर टाइट कर दिया, ना कि हम कंप्लीट हम असेंबली को निकाले। एक ब्रेक खोलना है तो मैं मोटर को भी निकालो, इसको भी निकालो, उसको भी निकालो, ऐसा नहीं। तो वैसा इजीएस्ट वे हमने अडॉप्ट किया है। वेल्डिंग में हम देखें हमारे पास क्वालिफाइड एवरेज 25 ईयर्स साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं। हम ये देखें एक्सपर्टीज तो वो 25, हम सॉ वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, जो हमारा वेल्डिंग है और जो हम वेल्डिंग करते हैं और डिजाइन के हिसाब से हम करते हैं। ट्रेवलिंग मोटर डायरेक्टली माउंटेड
परफेक्ट अलाइनमेंट हम करते हैं, अलाइनमेंट एक्सेसरीज सच एज फ्लोर, प्लेटफॉर्म एटसेट्रा, स्टील, bearing, motors, switch gears, bearing hooks, wire ropes. इसके एडवांटेज हम जस्ट देखें, ऑल इनपुट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू इंश्योर, हम जो स्टील लेते हैं वो ओनली सेल एंड, तीसरे का नाम नहीं का यूज करते हैं, जो कि अप्रूव्ड है। डायरेक्ट ओईएम से हम लेते हैं मोटर, स्पेशल क्रेन पर्पस मोटर मेरे, वायर रोप डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, उषा मार्टिन से। इसके बेनिफिट्स, ऑलमोस्ट नो डाउन टाइम, इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी। कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो हम आउटसोर्स करते हैं, एक तो हमारी प्रोडक्शन की इफिशियंसी बढ़ती है, दूसरा हमें अपने आप पर भी एक भरोसा आ जाता है कि हम जो सामान लगा रहे हैं उसमें हमें रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ एक सही आइटम है, सही सामान है, हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे डिजाइन। इसमें नो मेंटेनेंस एक्सेप्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इससे क्या होता है, अगर आपको हम सही सामान दे रहे हैं, सही सामान आप यूज कर रहे हैं, मेंटेनेंस की जरूरत, ओनली रिक्वायर्ड दैट प्रिवेंटिव एज पर यूजेज ऑफ योर इक्विपमेंट। मुझे 6 महीने पर इसमें ग्रीजिंग करना है, आफ्टर 8 मंथ इसमें ऑयल डालना है, इसकी सफाई करनी है, इसका सर्विस टेस्ट करना है, दैट एज पर योर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल प्लान। उसके बाद से एक सबसे बेटर बढ़िया बेनिफिट है क्या, कि ये हाईली एनर्जी इफिशिएंट होता है, जो हम मोटर एंड अदर थिंग्स यूज करते हैं। कॉमन हम इसको ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं मेजर, बिकॉज हमने चलाया इसको 10 मिनट चलाया, 20 मिनट चलाया, हमारा इक्विपमेंट एक काम करके उसके बाद से रुक गया, तो विद इन जी providing you energy efficient motor. Next is coming modular construction is to servicing at low cost, same we have told you earlier. Standardization, interchangeability at low inventory cost and short deliveries. अब मैं टाइम, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें किसी को कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज, फिर मैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर मैं चलता हूं, जो कि मैं आपको 2 दिन पहले से बता रहा था। टॉम, मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग कुछ बताएं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। जी बताएं सर, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताएं।
फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें। हाँ ठीक है सर, ठीक है। जी 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 बताएं सर। नहीं सर, कुछ नहीं सर। नहीं नहीं बोलिए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बट। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, मैंने कहा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। तो हम बेरिंग का बात करते हैं। of any make are always better than duplicate bearing. बिकॉज जहां भी मूविंग पार्ट्स है मेनली हम वहां बेरिंग का यूज करते हैं। कि कुछ फंस गया या बेरिंग हमारी खराब हो गई या डैमेज हो गई तो हमारे लिए एक छोटा सा आइटम है बेरिंग। सपोज एक छोटा बेरिंग से करते हैं, बट एक मान लीजिए कि छोटा बेरिंग आपका खराब हो गया और उसके लिए आपका काम रुक गया। दैट इज नॉट कॉस्टिंग मोर देन यू कैन से दैट। 1,000 रुपए की बेरिंग के लिए आपका 50,000 का ड्यू टू सप्लाइड बाय डुप्लीकेट बेरिंग। अगर आप इसमें बेरिंग में सावधानी नहीं बरते, मैं बताया कि 10% उनका प्राइस कम होगा, कम करेगा। आवाज बंद हो गई सर। द्विवेदी साहब, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। और Yes, लिटिल sir. बिट इंटरप्शन हो रही है। ओके ओके। जी हेलो। यस, आवाज अब आई है सर। जी लिटिल Yes, बिट sir. इंटरप्शन हो रही है, थोड़ी सी इशू आई है टेक्निकली, सो अभी कंटिन्यू हो जाएगी। लिटिल बिट हाँ। इंटरप्शन हुई है। हाँ जाइए, यहीं से कीजिए। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए वो टेक्निकल इशू आ गई थी। हाँ। जी बताएं सर। नहीं, आप कुछ कंटिन्यू करने। जी जी हम तो हम बात कर रहे थे बीरिंग का।
तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना है कि बेरिंग हमारी ओरिजिनल होनी चाहिए, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है केबल। केबल में कितने क्वालिटी है, कितने वेराइटी है, हम आप सबको पता है। मेरी आवाज आ रही है, एक बार बताएंगे सर? हाँ आ रही सर। नॉर्मली पीवीसी केबल आज के दिन में कितने वैरायटी के चल रहे हैं, कितने मैन्युफैक्चरर हैं केबल बनाने की। रुपए मीटर भी मिल जाएगी, 3 रुपए मीटर भी मिल जाएगी, कहीं पर वो 30 रुपए मीटर है, कहीं पर 200 रुपए मीटर है। तो देयर शुड बी सम डिफरेंस कि क्यों वो है। हम नॉर्मली यूज करते हैं रबर केबल, जिसकी लाइफ ज्यादा होती है। पीवीसी केबल में एक ये होता है कि उसकी टाइम बाउंड कम होती है, जो मतलब वो थोड़ी सी हीट और अदर मॉइस्चर एंड हीट से पीवीसी का कैपेबिलिटी है वो थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है, वो क्रैक होना शुरू हो जाता है। बट रबर में ऐसी बात नहीं है। रबर केबल एज इट इज डे 1 से लेकर लास्ट तक वैसा ही रहता है, जब तक कि वो कटे या टूटे नहीं। ओपिनियन स्पूर गियर clear number, no insist on helical gears, heat treated and profile ground। अब ये हमें गियर एंड पिनियन में चेक करना है कि वो हीट ट्रीटेड और प्रोफाइल ग्राउंड है या नहीं है। क्वालिटी एंड सिस्टम यूज द प्रोसेस इंस्पेक्शन। क्वालिटी एंड सिस्टम में इंफीरियर मटेरियल, जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ 100% इन चीज का, बट उनका क्वालिटी कितना अपडेट है, वो कैसे करते हैं, उनके पास क्या रिकॉर्ड्स है, ये आपको एक बार देखने वाले। डीएसएल में जो का हम बात कर रहे थे, डीएसएल का डाउन सोप लीड का 3 बार सराउंडेड बस बार 3 फेज +1 सराउंडेड बस बार प्रॉपर अर्थिंग, ये वो करके दे रहे हैं कि नहीं है, वो है कि नहीं है। बस बार आपकी RYB के साथ में NB होना चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए, मोटर की, पैनल की, आपके इक्विपमेंट की। तो ये सब चीजें अगर हम ध्यान देते हैं तो हम बहुत जल्दी देंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों का। जी, अब एक क्वेश्चन एंड आंसर हमने रखा है, तो आप इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ हमें अगर कुछ इसके अलावा भी जानना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट हमसे बात कर। सेशन के बारे में मैं थोड़ा फीडबैक आप लोगों से चाहूंगा कि क्या फीडबैक है, हमने जो किया उसमें कितना अच्छा रहा। दिस इज सुरेश फ्रॉम हैदराबाद। मेरा पूरा सेशन में बहुत कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में लाइक लोड कैलकुलेशंस ऐसे कुछ चीजें मिस हो गया लग रहा है। सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की। सर नेक्स्ट सेमिनार में we'll do this all, cover safety points and whatever data, if any data is send us your detail, will revert back to you, because ये time इतना कम था that every day we anyhow managing that 2 hours for the easiness of you people.
some things we have not explained you. But if you want, you can send us, you can write us. Our team will be contacted. Whatever details you require, you will receive it. जी सर ये तीनों दिन का प्रेजेंटेशन अगर शेयर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्चुअली लास्ट 2 दिन का मिस हो गया था, क्वाइट यूजफुल फॉर अस। सर मैं ये तीनों दिन का आप सर और ये मेरे वेबसाइट में भी डाला हुआ है। अच्छा ओके ओके सर, Yesterday and day before yesterday और YouTube presentation is there और सर आज का भी मैं शेयर करूंगा। ओके अगर ओके इन सर केस इसके बाद भी नहीं मिलता है तो यू कैन राइट डाउन टू अस, विल शेयर यू। ओके 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 फाइन सर। जी और कोई कुछ बताना चाहते हैं? Sir, it was a nice and informative presentation that covered under the mentioned. It is almost covered. It is very much informative. Thank you, sir. Thank you, sir. It's my pleasure, sir. जी anyone? जी और कोई कुछ बताना चाह रहे हैं? प्लीज 7 मिनट टाइम है, हम बातें कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज फीडबैक जरूर, so that we can appreciate your efforts and enthusiasm supporting to us. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you. Very much. Thank Very you. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Take care, everyone. Thank you. Okay, and thank goodbye to all. Namaskar. Meet you. Thank you, sir. Sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks, sir. One more request you. In November, we are doing that maintenance workshop, same like if situation we can do that physically. Otherwise, again that by webinar only. So I request you all that supporting service and maintenance people, you must register their name and they will join. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Take care. Bye. Okay, right. Thank you, sir. Thank you.